کہ مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ مسلم سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں میں نصارہ ہوں, آئی ایم اے کرسچن. یہ قرآن کی آیت ہے. اور قرآن میں 1/3 حصہ 1/3 of the Quran, 1/3 of the Quran is addressed to, مخاطب ہے یا اہل الکتاب, یا اہل الکتاب, کہو اہل کتاب سے, یہود اور نصارہ سے. تو 1/3 حصہ قرآن مجید کا تقریباً اہل کتاب سے مخاطب ہے. اور آپ کا سوال کہ اللہ کے رسول رحمت اللہ عالمین بے شک ہے, قرآن کی آیت ہے, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین, رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے, سارے انسانیت کے لیے. وہ بے شک ہے, اس پہ کئی کتاب لکھی گئی. اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں, اس کی وجہ جاننا ضروری ہے. مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفرت سے بھی دیکھتے, نہیں دیکھنا چاہیے, نہیں دیکھنا چاہیے. اگر وجہ ایک دم صحیح ہے, میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں. اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت آئیں گی, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے مسیح ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے, اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے یا زنا بالجبر کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے؟ ارے رحمت للعالمین. کیا بولیں گے؟ السلام علیکم بولیں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ اگر آپ بلاತ್ಕಾರ دیکھ رہے, زنا بالجبر ہو رہا ہے, اب کیا کہیں گے؟ میں مسلمان ہوں, السلام علیکم. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں کوسو. یہ مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ برے انسان ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ غلط کام کہہ رہے, لیکن اگر کوئی مسلمان, میں آپ کو نفرت کی نظر کے دیکھ رہا ہوں, جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آن دا مائکروفون پلیز, آن دا مائکروفون, I love you too. خلاص. تو آپ یہ جنرل اسٹیٹمنٹ دینا کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میرے لیے گالی ہو گئی نا. نو سر, معذرت, میرے اکیلے ساتھ نہیں, میرے تو بہت اچھے اچھے دوست ہیں, بلکہ بہت سے علماء میرے دوست ہیں. ماشاء اللہ. اجتماعی طور پہ کوئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو ہمارے چرچز کے اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے, ہمارے سامنے ہمارے ایمان کی دھجیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں, اور ہم خاموشی سے ایک گیدڑ کی طرح کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا ہے. میں اجتماعی بات کر رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں یہ پورا جو ہے پورا ہے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے, تقریر کا سیشن نہیں ہے. تقریر کے سیشن کے لیے آپ ایک ہال ہائر کر سکتے. آپ کا سوال آپ نے پوچھے, میں جواب دیا. اگر کوئی شخص بنا وجہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو غلط ہے. اور قرآن کی تو آیت ہے, جتنے بھی غیر مسلمان ہیں سب سے قریب ہے جو نصارہ ہے. اگر آپ کچھ غلط کام کیے اور کوئی نفرت کرتا ہے, وہ بھی قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34, سورہ فصلت چیپٹر 41 ورس 34. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے اس کا بدلہ اچھائی سے دو. جاوید بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر کوئی آپ سے برا برتاؤ کرتا ہے تو قرآن فرماتے, اللہ تعالیٰ فرماتے, ان سے اچھا برتاؤ کرو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائیں گا. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 64. تو اگر کوئی مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ نان پریکٹسنگ مسلم ہوگا. مطلب ہر مسلمان تو میں نہیں کہہ سکتا اچھا ہے,
और अगर कोई एक शख्स कोई गलती करता है, आप जैसा कहे कि पूरे कौम पे चढ़ाव करना बिल्कुल गलत है, ये इस्लाम में भी नहीं है। अगर कोई एक शख्स गलती करता है और वो सजा का हकदार है, उसको सजा मिलना चाहिए, उसका मतलब नहीं पूरी कौम। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप तारीख पढ़ेंगे, आप तारीख में पढ़ो, चाहे वो 6वीं सदी की हो, 7वीं सदी की हो, 8वीं सदी की हो, आप देखेंगे सबसे महफूज अगर कोई जनरल दीन को फॉलो करने, वो इस्लाम के रूल में, इस्लाम अगर रूल कर रहा है उस शहर को, तो जितने गैर मुस्लिम थे वो अपने आप को महफूज समझते थे। क्यों? इस्लाम में है कि आपको इस्लाम कबूल करने का करो, नहीं करने का नो प्रॉब्लम, एक जजिया दो। ये जजिया कुछ बड़ी अमाउंट नहीं, आपकी इनकम टैक्स से बहुत कम है। जजिया मतलब आप मानते हैं कि ठीक है आपको इस्लाम नहीं कबूल करने का, लेकिन मैं आपके अंदर पनाह चाहता हूं, तो जिजिया टैक्स आप देते, आप कबूल करते, और जब जिजिया टैक्स देते आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इस्लाम में कहते हैं दिम्मी। और आप अगर इस्लामिक शरिया रूल के अंदर गैर मुस्लिम हैं, तो मुसलमान मुल्क का फर्ज है कि आपको महफूज रखे, आपको कोई छू नहीं सकता है। और अगर जंग होता है तो आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं, बाकी सब मुसलमान को लड़ने पड़ेगा। और जिजिया बहुत कम है, इनकम टैक्स का तो स्मॉल परसेंटेज है। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया, उस वक्त जो क्रिश्चियंस थे, ईसाई मजहब में कई फिरके थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक्स, खुद ईसाई लोग अपने बाकी ईसाई भाइयों से उनका कत्ल करते थे। और जब इन लोग ने कॉन्कर किया कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो मुसलमानों पे जुल्म किया। तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कॉन्कर किया तो ईसाई लोग डर गए कि अभी तो हम लोग की मौत आ गई। तो उनने कहा मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी हूं, मैं मुसलमान हूं, आप मेरे राज में महफूज है। और इतना हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, क्रिश्चियंस, ईसाई चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रूल करे ताकि वो महफूज हो। तो अब हिस्ट्री पढ़िए, आज मुसलमान को देख के दीन को मत समझिए, कुरान को पढ़िए, हदीस को पढ़िए। और इसमें आप देखेंगे कि कुरान के अंदर किस तरीके से इज्जत दी है गैर मुसलमानों को। दावत दो, कबूल करते अच्छी बात है, नहीं कबूल करती किस पे जोर जबरदस्ती नहीं। अगर कोई इस्लामिक मुल्क में कोई भी चर्च है या टेंपल है, उसे डिस्ट्रॉय करने की इजाजत नहीं, अनलेस वो कोई फितना कर रहा है। ये सब उसूल है। वो फितना कर रहा है तो अलग बात है। तो एक इस्लामिक मुल्क में सबसे ज्यादा महफूज है मुसलमान। और मैं मिसाल देता हूं, मेरी जाम में से आ रहा हूं, मलेशिया में हिंदू 6% है, 6.3%, 6.3% है। आप कंपेयर करेंगे बिटवीन इंडिया, जिस तरीके से इंडिया माइनॉरिटी मुसलमानों को ट्रीट करता है, हम 14.3% है अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, वहां मलेशिया में 6.2%। लेकिन जिस तरीके से मलेशिया हिंदू लोगों को ट्रीट करता है, इतने अच्छे तरीके से, इतने उनको राइट्स दिए, ये एक मिसाल है। मैं पाकिस्तान के बारे में कह नहीं सकता हूं क्योंकि रहता नहीं हूं। मैं नहीं कहता हूं पाकिस्तान अच्छा सुलूक करता है, नहीं अच्छा सुलूक करता हूं, मुझे हक नहीं बोलने का क्योंकि मैं जानता नहीं हूं। लेकिन मलेशिया में जहां रहता हूं मैं जानता हूं, इतने राइट्स है उनके पास, इतने हुकूक दिए गए। तो इस्लाम के अंदर गैर मुसलमान महफूज है। सिर्फ फितना नहीं करना चाहिए कि कुरान कहते फितना इज वर्स देन मौत, कत्ल से और खराब है। तो अगर आप फॉलो करते जो उस इस्लामिक मुल्क का कानून है, तो गैर मुस्लिम, सिर्फ गैर मुस्लिम होने की वजह से उन्हें कोई भी अटैक नहीं कर सकता है, और करता है तो गलत है। अस्सी में सलाम सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और ख़ास तौर पर जाकिर साहिब को और जितने भी यहाँ मेहमान बैठे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इखलाक मसीह है
اور میں تمام مذاہب کا طالب علم ہوں، جیسے کہ ذاکر نائک صاحب ہیں طالب علم. میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور بائبل سٹڈی بھی کرتا ہوں. اور ہماری ایک تنظیم ہے یہوہ وٹنس کے نام سے. وہ تنظیم جو ہے خدائے واحد پر ایمان رکھتی ہے اور خدائے واحد کی تعلیم دیتی ہے. جیسے کہ مسیح السلام نے یوحنا کی انجیل 3 کی 17 آیت میں بتایا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور بارحق جسے میں نے اس کو پہچانے، خدائے واحد کو پہچانے. سو ہمیں خدائے واحد کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح ہم جو ہے تمام مسیح بہن بھائیوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ جو نا خدائے واحد کی تعلیم کو جو نا برداشت نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو میں جناب ذاکر صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ان کا بہت فالوور ہوں، کیونکہ جو بھی یہ بات کرتے ہیں بڑی دلیل سے بات کرتے ہیں، اور جو دلیل دیتے ہیں وہ بڑی قابل ذکر ہوتی ہے، قابل غور ہوتی ہے. بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمیں مطلب ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ ہم خدائے واحد پہ ایمان رکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتا سکیں اس چیز کو واضح طور پہ. شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کس طریقے سے ہمیں ایک خدا پہ ایمان ہوں، اور میں نے میرے پہلے سوال کا جواب میں کہہ چکا ہوں کہ فارمولا ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ دی ایبسولوٹ انٹرنل، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی خدا کی عبادت کرتا ہے، اسے کہتا ہے خدا، آپ کو اس کو ٹیسٹ پہ ڈالنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، ہم بھگوان رجنیش کو ٹیسٹ پہ ڈالتے سورہ اخلاص کے. ایک شخص نے مجھے کہا ہم ہندو بھگوان رجنیش کو خدا نہیں مانتے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو بھگوان رجنیش کو خدا مانتے. میں نے کہا کچھ انسان بھگوان رجنیش کو خدا مانتے. ہم اس کو ٹیسٹ پہ ڈالیں گے سورہ اخلاص کے. پہلا ٹیسٹ ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا رجنیش ایک ہے؟ اب ہندوستان میں دیکھیں گے ہزاروں لوگ، ہزاروں انسان اپنے آپ کو بھگوان کہتے، وہ ایک تو نہیں ہے. لیکن بھگنیش شخص کہے گا نہیں میرا ایک ہی ہے. نمبر 2 اللہ الصمد، اللہ دی ایبسولوٹ انٹرنل. کہ رجنیش ایبسولوٹ انٹرنل تھا؟ کیا وہ صمد تھا؟ ہم جانتے اس کی آٹو بایوگرافی میں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش استھما سے سفر کر رہے تھے، ڈائبٹیز ملائٹس سے. آپ سوچو، خدا کو استھما ہو گیا، خدا کو ڈائبٹیز ملائٹس ہو گیا. تیسرا ٹیسٹ لم یلد ولم یولد، ہی بگیٹس ناٹ نو از بیگوٹن، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ہم جانتے ہیں بھگوان رجنیش کے والدین تھے، وہ یو پی میں پیدا ہوا. اس کے بعد وہ خود، ان کے والدین اس کے ڈسائپل بنتے، ان کے بھکت بنتے. وہ 1981 میں جاتے یو ایس اے، اور یو ایس اے میں ایک گاؤں رہتا ہے جس کا نام ہے اوریگن. اس کے اندر اپنا ادارہ قائم کرتے، کہتے رجنیش پورم. اس کے بعد چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اسے اریسٹ کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دی. سلو پوائزننگ، آج سوچ سکتے خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے. اور رجنیش اب وہ واپس آتے پونا میں، انڈیا میں، مہاراشٹر میں، اور ایک نیا آرگنائزیشن شروع کرتے اوشو. اس کے مرنے کے بعد اس کے سمادھی پہ لکھا ہے اوشو رجنیش never born, never died, but visited the earth from the 19th of December to the 31st of January. بھگوان رجنیش نہ پیدا ہوا نہ مرا، لیکن اس دھرتی کو وزٹ کرنے کے لیے، دھرتی کو گھومنے کے لیے وہ آیا. اس سمادھی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کا ویزا نہیں ملا. آپ سوچ سکتے خدا بھگوان دھرتی کے وزٹ کرنے آتا ہے اور اس کو ویزا کی ضرورت ہے.
और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस कहते हैं अगर आप भगवान रजनीश को नहीं निकालेंगे हम उसका घर जला देंगे। तो जो भी आप कहते हैं खुदा है, उसे सूरे इखलास के तराजू पे तोलो। अगर वो पास होता है हमें कोई गिला शिकवा नहीं कि वो खुदा है, लेकिन अगर पास नहीं होता है तो वो गलत खुदा है। तो सूरे इखलास इज द टच स्टोन, इट इज द लिटमस टेस्ट फॉर नोइंग, जानने के लिए वो असली खुदा है कि नहीं। होप द आंसर द क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है ख़वातीन की जानिब से बस, फिर बाकी जो आपके सवालात हैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब 5 और 6 अक्टूबर को भी इंशाल्लाह इधर ही गवर्नर हाउस में नशस्त होगी, जिसमें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सवालों जवाब की नशस्त भी होगी। तो आखिरी क्वेश्चन ख़वातीन की जानिब से। मैं हमना हबीबी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक। और पिछले वीक हमारी क्लास में ये डिस्कशन हो रही थी कि ख्वातीन के साथ कैन वी अलाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम? ओके। अगर कोई गैर मुस्लिम है भाई या बहन जो सवाल पूछना चाहते, कोई नॉन मुस्लिम गैर मुसलमान है? सर नॉट अवेलेबल। अरे आप तो एकदम जंकी के, जो लास्ट टाइम नॉट अवेलेबल बोल के 3 आ गए। पूछने दो ना मुझे प्यार से, आपसे डरते होंगे शायद, मेरे से नहीं डरेंगे। अगर कोई गैर मुस्लिम, दो हाथ ऊपर, कोई गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहता है, आपका सेकंड होगा। अगर कोई नया गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहता है, आप माशाल्लाह गवर्नर हाउस में महफूज है। कोई नॉन मुस्लिम कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई खवातीन के शोबे से या कोई नॉन मुस्लिम है? अच्छा भाई साहब पूछ सकते हो। आपका नाम और आपका पेशा? आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रशीद मेमन है। मैंने पूछा गैर मुस्लिम और आप कुछ सवाल पूछ रहे। नहीं, गैर मुस्लिम कोई भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। एक गैर मुस्लिम ने हाथ ऊपर किया था नहीं, उधर। वो मुस्लिम थे। कोई गैर मुस्लिम है? अगर गैर मुस्लिम ने तो पहले खातून को देंगे, उनने पहले पूछे। कौन गैर मुस्लिम है? एक खातून मुसलमान जिससे पूछी थी पहले, उसको। यहाँ पूछ सकते हैं सवाल। हम पूछ रहे थे कि मेन को इस्लाम में आपका नाम और आपका पेशा? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, माय नेम इज़ हमना हबीब। तो हमारा ये सवाल था कि मेन को इस्लाम में 1 मैरिज का राइट क्यों नहीं अलाउ, और वुमेन को इंफीरियर क्यों कहा गया है, जिस तरह कुरान में। मैं आपके सवाल को नहीं समझ सकता हूँ, अगर आप आस्ते से पूछेंगे। मेन को इस्लाम में 1 मैरिज का क्यों नहीं मिला, और वुमेन को इंफीरियर, जिस तरह गवाही में 1 मर्द के बराबर 2 औरतें हैं, तो ऐसा क्यों? एक सवाल में दोनों में से एक, पहला सवाल दो, दूसरा सवाल। पहला बता दें। पहला बहन ने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मर्द को 1 से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है, तो ये सवाल था ना? ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे दिगर मज़हब की किताब में, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे वेदा पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे तलमूद पढ़ो, कोई भी मजहबी किताब में ये नहीं लिखा है कि आप एक ही शादी करो। सिर्फ कुरान में लिखा है। कुरान के अलावा आप कोई भी मजहबी किताब पढ़ो, चाहे बाइबल हो, चाहे वेदा हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे तलमूद हो, कुरान के अलावा कोई भी किताब में नहीं लिखा है कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, कि कहते हैं कि आप अपनी पसंद के बीवी कर सकते, चाहे 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप उनमें अदल नहीं कर सकते, इफ यू कैन नॉट डू जस्टिस, आप सिर्फ एक शादी कर सकते। तो ये लफ्ज सिर्फ एक शादी कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। लोग को गलत फहमी है कि बाइबल में लिखेला एक शादी करो। मैंने बाइबल पढ़ चुका हूँ, कहानी लिखेला है, भगवत गीता में कहानी लिखेला है,
ये तो इंसान के बनाए हुए कानून है। क्या इंडिया में मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में लिखा हुआ है कि आप एक शादी कर सकते, ये चर्च कहता है। अब बाइबल में दिखाओ। मैं तो बाइबल कई बार पढ़ चुका हूं, किधर नहीं लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद खवातीन से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन आप उनके दरमियान अदल नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक। अगर आप पढ़ेंगे रामायण, रामायण में राम के वालिद की एक से ज्यादा बीवी थी। आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो कृष्ण की कितनी बीवियां थे? 4, 8, 10, 16,108। श्री कृष्ण के महाभारत में 16,108 बीवियां थे। आप बाइबल पढ़ेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवी थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवी थी। तो इस्लाम क्यों इजाजत देता है कि मर्द एक से ज्यादा बीवी कर सकता है? आमतौर पे आप देखेंगे मर्द और औरत जो पैदाइश होती है, मेन एंड फीमेल, अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि लड़कियां में ज्यादा कुव्वत है जर्म्स और डिजीजेस का मुकाबला करना बनिस्बत लड़कों में। मेडिकल डॉक्टर हूं, इसीलिए आप देखेंगे कि बचपन के एज में लड़कों की ज्यादा मौत होती है बनिस्बत लड़कियों के। तो आप अगर एवरेज देखेंगे 15 साल, 20 साल, 30 साल, लड़कों की तादाद ज्यादा है, सॉरी लड़कियों की तादाद ज्यादा है। आमतौर पे लोग मरते हैं सिगरेट पीने से, शराब पीने से। अक्सर मर्द मरते हैं शराब पीने से, सिगरेट पीने से। जब जंग होता है तो कौन ज्यादा मरते? लड़के, आदमी। सिर्फ एक जंग में औरतें ज्यादा मरी। कौन से जंग में? फलस्तीन के गाजा में। क्योंकि वो जंग नहीं थी, वो जेनोसाइड था। इजराइल ने चुन चुन के बच्चों और औरतों को मारा, 2/3। लेकिन अक्सर जब जंग होते थे, आप देखेंगे तो मर्द मरते बनिस्बत औरत से। तो आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पे यूएसए में, सिर्फ यूएसए में 42 लाख से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ रशिया में 1 करोड़ से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ जर्मनी में लाखों औरत मर्द से ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे दुनिया में औरतों की तादाद मर्द से ज्यादा है। मान लो मैं आपकी बात मानूंगा कि एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। 42 लाख। आप सोचो, अगर एक खातून को कोई हर मर्द एक औरत शादी करता है तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और 2 ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर्ड है। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई। हो सकता है कि उसके बीवी को कोई बच्चे नहीं होते, तो क्या ऑप्शन है?
पहली बीवी को तलाक दो और नई बीवी करो, या पहली बीवी को अपने साथ रखो, उसकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी बीवी करो, बच्चे पैदा करो। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे? तलाक दे के नहीं शादी करना, पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो और दोनों को बराबर राइट्स दो, इक्वल राइट्स। तो कई वजह है इस्लाम में, इसीलिए इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। मेरी एक तकरीर है जिसका टॉपिक है वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, अगर वो आप देखेंगे उसमें आपको इसका भी जवाब डिटेल में मिलेगा और जो दूसरा सवाल करे थे उसका भी जवाब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 दिन बाद मरियम अलैहिस्सलाम के भाई को जिंदा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने पढ़ा कि खुदा की तरह जैसे खुदा दुनिया बनने से पहले पानी पे था, ऐसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे चल सकते थे। इन्हीं वजूहात से वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। तो क्या वो इन वजूहात की तरफ से खुदा को क्यों नहीं मान सकते, जबकि वो ऐसी चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं? दूसरी बात ये कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने उन्हें इस्लाम के लिए वफ़ किया। सर छोटा सा एक सवाल, एक वक्त में इस सवाल का जवाब दे दें डॉक्टर साहब प्लीज। शुक्रिया। मेरे माइक को ऑफ मत कीजिए। जज़ाकल्लाह। भाई साहब ने कहा कि उनके एक ईसाई भाई है और उन्हें सवाल किए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे में जान डाली और पानी पे चले, तो ये सब जो मौजिज़ा है वो साबित नहीं करता है कि वो खुदा है। इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके लिए फर्ज है हर मुसलमान को कि वो माने ईसा अलैहिस्सलाम में। कोई भी मुस्लिम अगर ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं है। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के पैदा हुए। हम मानते हैं जो कई ईसाई आज नहीं मानते। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जिसको कोढ़ था, लेप्रेसी थी, उनका इलाज किया। अगर हम देखेंगे तो मुसलमान और ईसाई एक साथ में, हमारा जो यकीन है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक है, लेकिन एक इख्तिलाफ है जो बड़ा इख्तिलाफ है। अक्सर ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में आप पूरी बाइबल पढ़िए, बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी ईसाई शख्स बाइबल में से कहीं भी मुझे यह साबित कर दे, ये दिखा दे बाइबल में क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं जाकिर नाइक आज ईसाईयत कबूल करने को तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमानों को ये कहने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं तकाबुल अदयान का तालिब हूं। आम मुसलमान नहीं कह सकता ये, लेकिन अगर आप तकाबुल अदयान के माहिर है या स्टूडेंट है, आपने बाइबल पढ़ी तो आपको पता लगेगा कि बाइबल में लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद मेरे से महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे अब्बा सबसे महान है। Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20,
I with the finger of God cast out devil. मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं. Gospel of John chapter number 5 verse number 30. Gospel of John chapter number 5 आयत नंबर 30. मुझे आदत है अंग्रेजी में बोलने की. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में, मैं मेरे अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं. I of my own can do nothing. As I hear, I judge. जैसे मैं सुनता हूं, मैं जजमेंट देता हूं. For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं खुद के तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, वही मानता हूं जो मेरे अब्बा कहते हैं, मेरे खुदा कहते हैं. ये लफ्ज माय फादर बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते खुदा के लिए. यानी बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 30 में, क्या ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं वो चीज मानता हूं जो मेरे अल्लाह कहते हैं. अगर आप अरबी में उसको तर्जुमा करेंगे तो मुस्लिम हो जाता है. तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे. उन्हें कहीं भी नहीं कहा कि वो भगवान थे या खुदा थे या ईश्वर थे. और मैं रेफरेंस देते जा सकता हूं, वक्त की किल्लत है. जो आपका सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, वो तो कुरान में भी लिखेला है. ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली बिइज़्निल्लाह, विद द नेम ऑफ अल्लाह. लेकिन मौजिज़ा कभी भी टेस्ट नहीं है जानने के लिए वो खुदा है कि नहीं. इस्लाम में मौजिज़ा दिया गया था पैगंबरों को, और कई पैगंबरों के पास मौजिज़ा थे. और बाइबल में भी लिखा है. बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 कि बहुत से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो आपको बेवकूफ बनाएंगे, और विल ऑल्सो डिसीव द इलेक्ट. अने जो इलेक्टेड लोग हैं, जो 12 अपोस्टल थे, उनको भी बेवकूफ बनाएंगे. अने मौजिज़ा अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज नॉट द टेस्ट. आप समझ रहे? मौजिज़ा करना कोई टेस्ट नहीं कि आप खुदा बन जाते. जितने भी मौजिज़े हुए अल्लाह ने किए, भले कि ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए या मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, लेकिन जितने भी मौजिज़े हुए वो अल्लाह ताला खुद करते हैं अपने नबी, अपने रसूल के जरिए. तो इवन बाइबल में लिखा हुआ है कि मौजिज़ा करने से कोई भगवान नहीं बन जाता, ईश्वर नहीं बन जाता, खुदा नहीं बन जाते. अक्सर रसूल, इवन आप पढ़ेंगे बाइबल में, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंकी, वो सांप बन गया, तो खुदा हो गया. मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंका. जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, अनेक इंसान को जान दी. मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जान नहीं डाली, एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में तब्दीली की. एक लकड़ी को फेंका जो प्लांट किंगडम है, उसमें जान डाल के एनिमल किंगडम स्नेक में तब्दील किया. तो कौन सा बड़ा मौजूद है? कौन सा बड़ा मौजूद है? इंसान में जान डालना या लकड़ी को सांप बनाना? साइंटिफिकली लकड़ी को सांप बनाना मतलब जान भी डाली, और प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में क्या. तो आपको कहने पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है. तो आपका दोस्त बोलेगा नहीं. मैं बोला क्यों? अगर एक मयार इस्तेमाल करते हो तो मयार सब जगह इस्तेमाल करो ना. तो मौजिज़ा बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से टेस्ट नहीं है जानने के लिए खुदा है क्या नहीं. खुदा जानने के लिए टेस्ट है जो मैंने कहा था सूरह इखलास, और जो मैंने जो हवाले दिए बाइबल की.